کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے مداخلت کی ہے آئی ٹی کے شعبے میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، یعنی وی پی این کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک غیر شرعی چیز ہے۔ اس کو ویسے جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اور وہاں پہ گھومنے کے لیے، کاروبار کے لیے، ان ملکوں میں تو واٹس ایپ استعمال ہی نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں پہ تو وی پی این لگا کے یہ علماء حضرات، علماء کرام اور باقی سارے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن چلیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، اور ویسے ہمارے علماء کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، جب بھی انہیں کبھی لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہے تو وہ غیر شرعی ہو جاتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی ایک دور میں غیر شرعی تھا، پھر ہم نے دیکھا یہ سارے اس کے اندر ہی تقریریں کرتے ہیں۔ پھر ایک دور میں ہم نے سنا تصویر جو ہے وہ غیر قانونی ہے، پھر ہم نے دیکھا ان ساروں کے اپنے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہے، دڑا دڑ وہاں ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں، ان کو مشہوری کا شوق بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عورت جو ہے اس کی سیاست جو ہے وہ غیر شرعی ہے، پھر ہم نے دیکھا یہ سارے جو ہے نا وہ عورتوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جو سیاست کر رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کا بھی کوئی دین ایمان مجھے کو سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے وی پی این کو تو غیر شرعی قرار دے دیا ہے ہمارے علماء اکرام نے، لیکن انتہائی احترام کے ساتھ میں پاکستانی علماء اکرام سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دھاندلی کیا غیر شرعی نہیں ہے؟ چند سوالات ہیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی غیر شرعی نہیں ہے؟ عدت والا کیس جو بنایا گیا تھا اس پہ آپ کی رائے نہیں آئی، وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں جب پھینکی گئیں ہیلی کاپٹر سے، وہ کام شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ اس کے اوپر آپ نہیں بولے۔ جھوٹے مقدمات کیے گئے، خواتین اور بچوں پر لگاتار تشدد کیا گیا، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے نہیں بتایا کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ ملک میں ہونے والی غیر قانونی جبری گمشدگیاں یہ غیر شرعی ہے یا شرعی ہے؟ اغوا برائے بیان یہ شرعی ہوتا ہے یا غیر شرعی ہوتا ہے؟ کرپشن کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی ہمیں علماء اکرام بتا دیں۔ فلسطین کے حق میں اگر لوگ نکلے احتجاج کے لیے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان پہ ٹارچر کیا جائے، یہ جو گرفتاریاں اور تشدد ہے یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ آئین پر حملے کے لیے اراکین اسمبلی کی بہو بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے، گھر کی خواتین کو اٹھا لیا جائے، خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، تو یہ کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ یعنی بے شمار ایسے معاملات ہوئے اس ملک میں، اور بھی معاملات ہیں، یعنی مثال کے طور پہ کرپشن سے بچنے کے لیے اس ملک میں کرپشن کا قانون ہی بدل دیا گیا، وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ غریبوں کو مرتے ہوئے چھوڑ کر حکمران جو ہے وہ یورپ کی ہواؤں میں اپنے علاج کے لیے چلے گئے، وہ شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ دیکھیں یہ علماء کرام ایک بات یاد رکھیں، پاکستان اس وقت بے شمار مظلوموں کا ملک ہے، اور یہ مظلوم ظالموں کا گریبان تو پکڑیں گے قیامت والے دن۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء کرام اپنے گریبان بھی پیش کر رہے ہیں، اور ریزن پتہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ یہ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر سے وہ بات کریں جو بات دین کہتا ہے، جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، یہ کرتے وہ ہیں جو اس وقت کی ریاست کو یا اس وقت کے حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے۔ حکمرانوں کے درباریوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں یہ علماء کرام، یہ حق کے لیے نہیں بولتے، ظلم کے خلاف نہیں بولتے، جبر کے خلاف نہیں بولتے، اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ اس کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان علماء کرام کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں نا علماء کرام کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے، تو سب سے پہلے اس غیر شرعی کام میں شہباز شریف کو پکڑ لیں آپ۔ شہباز شریف ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر کے کمیونٹی نوٹ لگوا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے بہت سارے مولوی ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں، جن کے سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، تو وہ ٹویٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی موکل ہے جو اس کو ٹویٹ یہ کام میں بتا دیتے ہیں؟ وہ دوڑ کے جاتا ہے کسی ایسے ملک میں اڑتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے جا کے ان کی ٹویٹ کر کے وہاں سے بغیر وی پی این کے کام کر کے واپس آ جاتا ہے؟ کیا ان علماء نے اپنے ساتھ موکل رکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے؟ بھائی یہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے وی پی این استعمال کر رہے ہوتے ہیں؟ وداؤٹ وی پی این وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب خود کریں تو ٹھیک ہے، جب قوم کرے تو غلط ہے۔ یعنی آج نوجوان کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے، یہ روزے قیامت آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ جب ہمارے رب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا، فسطائیت چل رہی تھی، ہر چیز کو کنٹرول کیا گیا تھا، تو ہمارے پاس ایک ہتھیار تھا، ایک رستہ تھا جس سے ہم اپنی آواز بلند کرتے تھے، اور ہمارے اس وقت کے علماء اکرام نے ہماری وہ آواز بند کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھاتے، بجائے اس کے کہ وہ حکمرانوں سے کہتے کہ ظلم اور زیادتی بند کرو، وہ حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے وہ آواز بھی چھیننے کی کوشش کی۔ اب جناب یہ علماء کیسے بولتے ہیں، کون ان کو بلواتا ہے، آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی میں اب ان کے بارے میں اور کیا بولوں، زیادہ بولوں گا تو گستاخی ہو جائے گی، لیکن بہت سارے ایسے معاملات پہ جہاں پہ ان علماء اکرام کو بولنا تھا نہیں بولے، بہت ساری ایسے ظلم اور زیادتیاں تھی کہ پوری قوم چیخ اٹھی، بولنا تھا، یہ نہیں بولے۔ یہ ہمیشہ تب بولتے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو چابی دیتی ہے، تو یہ فوری طور پہ اپنا سٹیٹمنٹ داغ دیتے ہیں، اور ایسے معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اوپر قصوروار خود اس وقت وزیر اعظم ہے، وہ خود اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے۔ پہلا کیس تو وزیر اعظم پہ بنائے نا، اور کیس بنائے گا کون؟ اسلام آباد کی پولیس۔ اسلام آباد پولیس کا اپنا اکاؤنٹ وی پی این کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی منافقت اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ اس کو یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو استعمال نہیں کرنا پاکستانیوں کے خلاف۔ آج پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی جیل کی طرح کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ جو آدمی آزاد رہنا چاہتا ہے، آزاد سوچنا چاہتا ہے، آزاد بولنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکستان میں جگہ ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ چھپتا پھرے گا
या इश्तिहारियों की तरह जिंदगी गुजारेगा, या वो जेल में बंद रहेगा, या उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये निजाम जबर और फस्तायत की इंतहाओं पर पहुंच गया है। आप मिसाल देख लेना इमरान खान के केस की, आज उन्होंने उसके एक पहलू पे बात की है, और ये इतना बड़ा मामला है, ये इतना बड़ा मामला है कि अगर पीएमएलएन के दौर में ना जब नवाज शरीफ पे केसेस चल रहे थे तो इतनी सी चीज आती थी ना, तो वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसके ऊपर करते थे, इतनी सी चीज पे, और पाकिस्तान का मीडिया उसको पोर्ट्रे करता था, हर तरफ खबरें बनती थी उसकी। इतना बड़ा मामला कल एतराफे जुर्म किया है नैब ने, इतने बड़े मामले का कि जनाब ये केस जिसमें इमरान खान को 1 साल से उनकी बीवी को और उनको अंदर रखा गया, ऐसा केस तोशाखाना का जिसमें इमरान खान को और उनकी बीवी को 1 साल तक अंदर रखा गया। ऐसे केस के अंदर, उसी केस के अंदर नैब आकर कहता है वो केस ही हमने गलत चलाया था, उसको वापस कर दे पुरानी तरीकों में, हम दोबारा से उसको शुरू करेंगे और दोबारा उसकी तहकीकात करेंगे और दोबारा उसके फैक्ट्स लेकर आएंगे। इतना बड़ा एतराफे जुर्म है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर, ऐसे आदमी के ऊपर एक केस बनाकर झूठा उसको 1 साल जेल में रखा, 1 साल के बाद एतराफ करेंगे वो केस हमसे गलत बन गया था। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जी हमें दोबारा मौका दिया जाए, हमने चलाना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को और जो इसका आईओ है उसको और जो प्रोसिक्यूटर वगैरह है ये सारे इस्तीफे दें और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे अब इमरान खान साहब से जो लोग अंदर मिलकर आते हैं वो आकर खबरें भी रिपोर्ट नहीं कर पाते, इमरान खान के हवाले से खबरें भी नहीं चल रही। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ना कि नैब ने जनाब एतराफे जुर्म कर लिया है और इमरान खान ने कहा कि इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इन्होंने 1 साल मुझे और मेरी बीवी को अंदर रखा है। अब मामला यह है कि नैब ने अगर इस एतराफे जुर्म के बाद ये तस्लीम किया कि उनसे गलती हुई है तो पाकिस्तान का कोई मीडिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है या पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं? आपको नहीं दिखाएंगे। टीवी चैनल्स को इस वक्त जो हुक्म दिया गया है लेटेस्ट वो ये दिया गया है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बयानियां फैलाएं और पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा करें कि इमरान खान की बीवी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। दूसरी जानिब जनाब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें जो है उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाए कि वो दूसरी साइड को टेक ओवर कर रही हैं और इमरान खान की जेल में मौजूदगी के दौरान अब ये प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जाए कि उनकी बीवी और उनकी जो बहनें हैं उनके बीच में पार्टी के लिए रस्साकशी हो रही है। ये इस फ्रॉड में सारे मीडिया को लगा दिया। मीडिया बार बार बारीक वारदात डालता है। इमरान खान ने बार बार कैटेगोरिकली कहा कि ना मेरी बहनों का कोई ताल्लुक है सियासत से, ना मेरी बीवी का कोई ताल्लुक है सियासत से। लेकिन जब वो इस पे स्टेटमेंट भी देते हैं तो हेडलाइन पता क्या चलती है मीडिया पे, बीवी की सियासत, इमरान खान ने असल बात बता दी। यानी वहां पे भी नहीं लिखते कि एक्चुअली इमरान खान साहब जनाब क्या क्या रहे हैं। इस तरह का सनसनीखेज किस्म का ऊपर कैप्शन लिखते हैं। वो रीजन ये है कि एक्चुअली ये नई ड्यूटी लगाई गई है पाकिस्तान के मीडिया की तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा करो। कुछ तहरीक इंसाफ के अपने बंदे भी हैं, वो भी ये ड्यूटियां कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से और वो बहुत तेजी से एक्सपोज भी हो रहे हैं। जितने असासे एस्टेब्लिशमेंट के मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो अपने आप को खुद नंगा कर रहे हैं और क्योंकि अब ये टाइम है डिलीवर करने का, लिहाजा वो बहुत तेजी से नंगे होंगे और सामने भी आ जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10, 20, 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या तहरीक इंसाफ ने इस मामले को उठाया कि हमारे लीडर को पिछले 1 साल से बेगुनाह जेल में बंद रखा हुआ है और अब जनाब नैब आके कह रहा है हमसे गलती हो गई, तो इस गलती के ऊपर नैब का मुहासबा कौन करेगा? ये सवाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना चाहिए था और दबंग तरीके से उठाना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस सवाल को नहीं उठाया। देखिए इस वक्त मसला है क्या पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा मसला वो ये है कि 2 चीजें कंट्रोल नहीं हो रही और ये दोनों चीजें ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने बरतानिया में बैठकर बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों के साथ की है। देखिए नवाज शरीफ के पास बरतानिया में कोई 30-40 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में फायदे दिए गए हैं, जिनके भाई बंधु रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट किए गए हैं, जिन्हें यहां पाकिस्तान में हुकूमत दिहाड़ियां लगवा रही है और इन लोगों ने 1-1, 2-2 बंदे अपने छोड़े हुए बरतानिया में। ये डायरेक्टली मफाद ले रहे हैं मियां नवाज शरीफ से या नून लीग से। अब ये चंद लोग तकरीबन 30-40 लोग हैं, ये वहां पे मौजूद हैं। मीटिंग होती है, मीटिंग में भी यही बैठते हैं। मीटिंग खत्म होती है, सड़क पे आते हैं, सड़क पे सिक्योरिटी भी यही दे रहे होते हैं। कहीं पे नारे लगाने, नारे भी ये लगा रहे होते हैं। यानी जो काम भी मियां नवाज शरीफ को पड़ता है पाकिस्तान से बाहर, वो सारा काम यही लोग मिलकर करते हैं। कोई टीम नहीं है, ये एक ही तरह के लोग हैं। यही सिक्योरिटी करते हैं, यही सोशल मीडिया करते हैं, यही ओवरसीज बन जाते हैं, यही आम शहरी बन जाते हैं, यही जब जरूरत पड़ती है कि 4 बंदे एहतजाज के लिए आ जाओ तो यही बैनर पकड़ के वहां पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक महदूद सी क्लास है। जबकि इमरान खान साहब के एहतजाज करने वाले लोग अलग है, सोशल मीडिया के लोग अलग है। यानी उनके पास कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद में है कि हर शोबे के एक्सपर्ट लोग अपने अपने काम करते हैं, तो उनका मुकाबला तो ये कर नहीं सकते। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान को तो उन्होंने जेल बना दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहां पे तो चीजें कर ली इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल। मीडिया इनके कंट्रोल में, अदालत इनके कंट्रोल में है, एस्टेब्लिशमेंट इनके कंट्रोल में है, या ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में है, एक दूसरे के काने हो गए हैं। और हर चीज पाकिस्तान में पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी से कंट्रोल करके, पुलिस से कंट्रोल करके 2 चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पता चलता है कि ये पाकिस्तान में ज्यादतियां और जुल्म हो रहे हैं। वो 2 चीजें, नंबर 1 सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। अब ये बीच में मौलवियों को लेकर आए कि किसी तरह जनाब उलमा इकराम को डाला जाए, उनसे भी जनाब फतवे दिलवाए जाए और सोशल मीडिया को किसी तरह काबू किया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सारी दुनिया से पैसे लेता है, तो जो मुल्क सारी दुनिया से पैसे लेता है वो दुनिया की एप्लीकेशंस को पाकिस्तान में बंद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान क्योंकि खुद कफील मुल्क नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी है मगरिब के ऊपर, लिहाजा इन साइट्स को हम बंद नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है।
हमारा तेल नहीं निकल रहा, ना कोई पाकिस्तान में सोने के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, ना कोई पूरी दुनिया जो है वो टूरिज्म के लिए पाकिस्तान में आ रही है, ना कोई हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया से हम आगे निकल गए हैं। जनाब हम बड़े गरीब मुल्क हैं, सारों से हम पैसे मांगते हैं, लिहाजा हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, हम उनको ब्लॉक नहीं कर सकते। नंबर एक तो ये बात है। अब ये ब्लॉकेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कभी वीपीएन खत्म कर देंगे। अभी वजारत दाखिला ने ये लिखा है, पीटीए खत लिखा है कि जनाब इसको जो वीपीएन गैर कानूनी उनको बंद कर दें। तो कानूनी वीपीएन और गैर कानूनी वीपीएन की तरह डेफिनेशन तो दे देना। और अगर तो पैसों वाले वीपीएन कानूनी है तो वो तो पूरे पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली क्लास है ना, वो मिडिल क्लास है और वो इतने भूखे भी नहीं है। वो एक वीपीएन लेंगे और सब आपस में बांटना शुरू कर देंगे, फिर एक और बंदा वीपीएन लेगा, वो आपस में बांटेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कंपेन भी चलाई हुई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वीपीएन लेकर आपस में कंट्रीब्यूट करके सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन्स में पेड वीपीएन लगा ले, ताकि उन्हें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की फराहमी में या इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में या सोशल मीडिया के इस्तेमाल में रुकावट ना आए, मुश्किलात पेश ना आए। तो एक मामला तो है सोशल मीडिया का, जिसमें मुकाबला हो ही नहीं पा रहा। ना पीएमएलएन मुकाबला कर रही है, ना पीपल्स पार्टी मुकाबला कर रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट कर पा रही है। सारे रल के बार बार कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाते। नंबर एक। नंबर दो, इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं पाकिस्तान के बाहर, बाकी जो 24 करोड़ है वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब वो जो 1 करोड़ बाहर रहते हैं वो ये बताते हैं कि बाकी 24 करोड़ के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में मुकदमा उठाते हैं। अब ये शक्लें उनको जहां नजर आती हैं वो एहतजाज शुरू कर देते हैं, जहां इनका मुंह नजर आता है। मैं शर्तिया कहता हूं, ये पाकिस्तान के अंदर भी मुंह नहीं दिखा सकते, लेकिन पाकिस्तान में ये अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने जेल बनाया हुआ है मुल्क को, और जैसी जेल इन्होंने बनाई हुई है वहां पे ये अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अब या ये पाकिस्तान में रह सकते हैं, या सऊदी अरब में रह सकते हैं, या ये किसी गल्फ कंट्री में रह सकते हैं जहां पे किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है, जहां पे बादशाहत है। वो बादशाहत के अंदर जो है ना अलाउ नहीं करते कि आप किसी के बाद एक जमहूरी बात करें या कोई आप खुल के अपनी आज़ादी है सारे राय का इस्तेमाल करें, आप वहां कर नहीं सकते। तो ये ऐसी जगहों पर तो रह सकते हैं, लेकिन ये किसी भी ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत है या आज़ादी है वहां पर ये नहीं रह सकते। कारोबार ये वहां करना चाहते हैं, पसंद इनको वो वाले मुल्क है, पसंद इनको यूरोप है, पसंद इनको अमेरिका है, पसंद इनको ऑस्ट्रेलिया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां जमहूरियत है, एसेट्स इनके वहां पड़े हुए हैं, बच्चे इनके वहां रहते हैं। अब ये वहां कैसे जाएं? ओवरसीज पाकिस्तानी इनके लिए दूसरा सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। इन दोनों मसलों को टैकल करने के लिए फिलहाल ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जावेद चौधरी ने एक बात की नवाज शरीफ के बारे में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का खानदान जो है ना, ऐसा लगता है कोई मकाफाते अमल हो गया इनके साथ और अल्लाह ताला इनसे नाराज हो गया, और अब ये जहां जाते हैं ना लोग इनको बुरा भला कहते हैं। ये अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते, सारी जिंदगी की इज्जत खाक में इनकी मिल गई है, तो इनको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। मैं ना जावेद चौधरी साहब से एक छोटा सा इख्तलाफ करता हूं माजरत के साथ, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है। अल्लाह से आप माफी मांगे वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है, वो रहीम है। आप जितने मर्जी गुनाह करें अल्लाह से कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह ताला माफ करता है, लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह माफ नहीं करता। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, जावेद चौधरी साहब को चाहिए किसी आलिम दीन से पूछें या रिसर्च करें। अल्लाह वो गुनाह तो माफ कर देगा जो रिलेटेड अल्लाह उसके बंदे के बीच में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करते हैं। वो आपको जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जुल्म इन्होंने लोगों के साथ किया, माफी अल्लाह से मांगे। मेरा मालिक माफ करने वाला है, लेकिन उसने कहा कि हुकूकुल इबाद की माफी नहीं दूंगा। इन्होंने लोगों पे जुल्म किया, जबर किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन और बच्चों को उठाया, मारा, रुसवा किया, जबरी गुमशुदगियां की। अल्लाह से माफी तो मांगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जाके इंसानों से भी माफी मांगे। इन्हें हाथ जोड़ के पाकिस्तानियों से माफी मांगनी होगी कि हमसे गलती हो गई, हम जूते पॉलिश करने में इतने मगन हो गए थे और हमें इक़्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट की गोद इतनी पसंद आ गई थी कि उस नशे में हमें पता ही नहीं चला कि हम इंसानी हकूक की पामालियों का हिस्सा बन गए। तो अब हम उनका हिस्सा नहीं है। कोई इस तरह की बात ये करें तो इनको माफी मिले। अब अंदाजा आप करें ना कि ये पंजाब के शहरियों को छोड़ के भागे हुए हैं, और पंजाब में अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ ये जो महीना चल रहा है नवंबर का, जो अभी आधा महीना हुआ है, इसमें 7 लाख से ज्यादा पंजाब के शहरी अस्पतालों में पहुंच गए हैं और फेफड़ों के प्रॉब्लम आम होते जा रहे हैं। यहाँ पे स्मोक की वजह से लोगों की जिंदगी कई साल कम हो रही है। आने वाली नस्लें जो है उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी अगर उन्हें स्मोक के साथ जीना पड़ा तो। उनके फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, सारा का सारा अंदरूनी सिस्टम उनका मुतासर हो रहा है। पिछले महीने अक्टूबर में लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं, और अब तक कोई 26-27 लाख लोग पंजाब में अस्पतालों में पहुंच गए हैं। जबकि पंजाब की वज़ीर आला कहती है टिकटॉकर के मुझे तो यहाँ पे इलाज ही नहीं है मेरा। इनका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। इनका इलाज सिर्फ डॉक्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी के पास है। वो अडियाला जेल से बैठ के इनका इलाज करेगा, जब वो बाहर आएगा तो इनकी बड़ी सर्जरी करेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भले चंगे हो जाएंगे। और झूठ बोलते हैं, ये पता नहीं पैरा थायराइड को पता नहीं प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में उसका इलाज है। वो सिंध वाले कह रहे हैं इतने आओ असी इलाज कर देने हैं, आप बिला वजह भाग भाग के जो है वो यूरोप में जा रही हैं।